evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Switch on your cameras. Everyone, switch on your cameras. Good evening, sir. What about the rest? बाकी बच्चों का क्या है? Have you gone through this the physical features of India? Physical features of India आप लोगों ने पढ़ा? I think I am teaching physical features of India right now, isn't it? Yes, sir. So, Kaushik, Sauran Baris, Vaibhav Gupta, will you please switch on your camera? Priyanka Bhagel, Jyotsna Kumari. If you don't have any problem, you can switch on your camera. Okay? Yes, physical features of India. So, in physical features of India, I taught you till कहाँ तक पढ़ा? From where we have to start today? Am I Sir, audible the to northern everyone? plain. Northern plain. Okay. So today we will do northern plain. Sauran Varis. Good. Vaibhav Gupta, Kush Kaushik. Am I audible? Vaibhav Gupta, Kush Kaushik. Yes, sir. Yes, Good. sir. Is Yes, there sir. any You are audible. problem? No, sir. Better, no? So switch on. Uh, सर yes. सर आज मैं सर कंप्यूटर से अटेंड कर रही हूँ तो सर इसमें वेबकैम नहीं है. चलो कोई बात नहीं. Rest of the people, you can. Okay. तो आई थिंक आप सब पढ़ के आए हैं. आप सब डीबीटी में सॉल्व कर रहे हैं. Isn't it? सुरेश वर्मा, लक्षेंद्र, सौरन, पढ़ के आए हो आप? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, should I ask you some questions? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. So, who will answer? Yes, Krish. आप बताइए. Am I audible to you, Krish? Yes, sir. यार कैमरा स्विच ऑन करके आंसर देना है. कैमरा ऑफ करके नहीं, कैमरा ऑन करके आंसर देना है ताकि मुझे ये लगे कि आप देख के नहीं बता रहे हो आंसर, है ना? ताकि मुझे ये लगे कि आप देख के आंसर नहीं बता रहे हो, आपने पढ़ा है, आप अपने से आंसर कर रहे हो. ओके, सो आई विल आस्क क्वेश्चन ओनली टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव switch on their cameras. Okay, so first question from Krish Verma. Krish Verma, I taught you plate tectonic theory in previous class, isn't it? In this tectonic theory, the crust of the earth is made up of various tectonic plates. There are 7 major tectonic plates. Name of them are Eurasian plate, North American plate, South American plate, African plate, Indo-Australian plate, Pacific plate, Antarctic plate. There are 3 types of plate boundaries: Conver- convergent boundary, divergent boundary, and transform boundary. In the convergent boundary, some plates come together each other and form convergent boundary. Some plate in divergent boundary, some plates move from each other and form divergent boundary. When two plates come Very good. together and they may collide and crumble, or one may slide over the another. At that time, they may move horizontally past each other and form the transform boundary. Okay, very good, Krish. तो क्रिश एक और क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय के बारे में पढ़ा, तो हिमालय का फॉर्मेशन जो है कौन से जगह पे, मतलब कौन से सी पे हुआ है? किस सी को जाना जाता है? टेथिस सी. Yes, sir.
पैथिस के अपलिफ्टमेंट की वजह से हुआ है। और उसके बाद जो है कि 6000 मीटर एवरेज हाइट किस हिमालय की है? हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज। और चलिए, वेरी गुड, गुड इनफ। हु विल आंसर नेक्स्ट? लक्षेंद्र, यस सर। आप बताइए कि कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जिसकी एवरेज हाइट 900 से 1100 मीटर? सर हिमाचल। इनकरेक्ट। एनी अदर सर शिवालिक। आंसर? शिवालिक, जोशीना। ओके, ठीक है, गुड आंसर, इट्स शिवालिक। लक्षेंद्र। यस सर। ओके, नाउ हु विल आंसर? सौरन, आप पढ़ के आए बेटा? Switch on your camera. Your camera is switched off. What about Vaibhav? Vaibhav, why you are not switching on your camera? Push Kaushik. Is there any problem? We all are at home. आप ऐसा कर सकते हैं? सर इंटरनेट कनेक्शन पुअर है सर, अगर कैमरा ऑन करके सर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। Push Kaushik. Sauran. Change. यस सर। Switch on your camera. सौरन, आपको पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो समझ में आया था आपको? यस सर। वेरी गुड। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जो पहला सेक्शन था हिमालय के बारे में, है ना? हिमालय में मैंने आपको थोड़ी बहुत जो है लेसर हिमालय के बारे में कुछ बताया था। लेसर हिमालय के बारे में क्या बताया था, बताना? सौरभ, यस सर। ये कैसे डिस्टरबेंस आ रहा है? कोई बात नहीं, आप अपना माइक ऑफ करिए। कौन बताएगा इसका आंसर? जोशिना, आप बताओ, चलो। सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ, सौरभ कुछ कह रहे हैं। सौरभ बताइए क्या कह रहे हैं? सर अनम को ज्वाइन कर लो सर, वो क्लास के लिए ज्वाइन कर रही है बार बार। किसको ज्वाइन करना है? सर इंतजार चौधरी। तो आई थिंक एकेडमिक डिपार्टमेंट यमुना विहार। हर्ष सर आप हैं? मधु मैडम? हर्ष सर या मधु मैडम को मेरी आवाज आ रही है? या कोई भी जो एकेडमिक डिपार्टमेंट इस समय देख रहे हैं, इसको होस्ट कर रहे हैं? तो आपको उनको बोल दीजिए, वो फोन करके जो है कि इंटीमेट कर दें एकेडमिक डिपार्टमेंट को, वो उनको इन करेंगे। ओके। Yes, Lakshan. Yes, Joshna. I asked about Himachal, lesser Himalaya. So, what do you understand the lesser Himalaya? What are the facts and figures which I taught you in previous class? सर मुझे आपकी आवाज से बहुत ज्यादा अटक के आ रही है। मैंने पूछा कि what I taught you in lesser Himalaya. What are the facts and figures which I taught you in previous class? Can you explain that part? आप लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे? जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं? Yes sir. Those who are not practicing DPP, they are doing great harm for themselves. Okay, लक्षण, I think आप आज पढ़ के नहीं आए हो। सर मैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था सर, मेरा पेपर है अगले हफ्ते, तो मुझे वो है अगले हफ्ते। कोई और बच्चा जो हिमाचल हिमालय के बारे में बता सकता है? मतलब इसमें बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ेंगे। चलिए ना, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछता हूँ। 2 क्लास हो गया। डीबीटी सॉल्व करेंगे, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दिस इज एक्चुअली डीबीटी रिवीजन, डीबीटी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन which I take for 10 to 15 minutes. Okay. और जिस बच्चे ने डीबीटी सॉल्व किया है, obviously that student will be able to answer my questions.
So if you will go through your DTP regularly, you will find my questions easier. Okay? समझ में आ रही है बात सभी को? सर यस सर। Okay. Yes, sir. चलो ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो है आपका नदन प्लेन्स। आई थिंक नदन प्लेन्स मैंने आप लोगों को स्टार्ट कर दिया था, आप लोगों के लिए किया है। नदन प्लेन्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। यस सर। नदन प्लेन्स में मैंने आपको बता दिया लेंथ 2400 किलोमीटर और स्प्रेड ओवर 7 लाख किलोमीटर मिलियन स्क्वायर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद और क्या बताया मैंने? सर दोबारा कर दीजिए। चलो नदन प्लेन्स। दादा नॉर्दर्न रॉक चले गए। हाँ नदन प्लेन्स। ओके लिख लो इसके बारे में। फॉर्म बाई alluvial soil, ठीक है, spread over an area of 7 lakh square kilometer। तो नेक्स्ट आपका देखें तो लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। उसके बाद चौड़ाई किसको कहते हैं? 242 320 किलोमीटर। ये डेंसली पॉपुलेटेड, ये सारी शायद मैंने चीज़ें बता रखी हैं सभी, फिर से बता दे रहा हूँ। एग्रीकल्चरली क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड। तो एग्रीकल्चरली क्या है? प्रोडक्टिव है, दैट्स व्हाई डेंसली पॉपुलेटेड। फिर रिवराइन आइलैंड के बारे में बताया ही आप लोगों को। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड किसका है? कहाँ पे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड? इंडिया में। इंडिया में कहाँ? असम में। ओके, कौन सा है असम में? माजुली आइलैंड। कौन सा आइलैंड? माजुली आइलैंड। ओके, कौन से रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा रिवर है आपका? तो ये सारे नतीजे हमें नदन प्लेन्स में पड़े हैं। अब नदन प्लेन्स में अगर आप देखो जो इसका फॉर्मेशन है नदन प्लेन्स का, नदन प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है वो 3 रिवर से मेनली बना है। 3 रिवर से, वो तो पहले ही मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नदन प्लेन्स यहाँ पे वेरी बिगिनिंग में बता दिया था। द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, ये रिवर फॉर्मेशन पे नदन प्लेन से क्या रिवर की वजह से इन नदन प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो अब इसका जो डिवीजन है, ठीक है, इस डिवीजन के बारे में देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में आपका पंजाब प्लेन। तो जो इसका जो डिवीजन हुआ है, एक है पंजाब प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन, तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र। तीसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। तो पंजाब प्लेन को देखिए, पंजाब प्लेन आपने पढ़ा ही है इन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कि जो ये वाला पोर्शन है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये पंजाब और भी हालांकि बड़ा है। अब देखो ना वेस्टर्न साइड का ये पोर्शन मालूम है ना, ज़्यादातर पंजाब का एरिया किसमें है? पाकिस्तान में। तो आप जो है यहाँ पे कहीं और ताकि आप और अच्छे से समझें।
समझे? ये अपना ऐसा ही है, कुछ लग रहा है ना इंडिया वाला ही मैप है, हालांकि थोड़ा बड़ा हो गया उसके हिसाब से। कुछ इस तरीके से है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पंजाब वाला किससे बना है? वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न साइड में किससे बना है? किसका पार्ट है? नॉर्दर्न साइड, पंजाब से। तो यहाँ पे इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखें तो इंडस की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज राइट इट डाउन समवेयर। ओके, 5 मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस कौन कौन सी हैं? हम आगे भी हालांकि इंडस के बारे में पढ़ेंगे, बट जो भी कंटेंट है उसको देख लेते हैं। तो इसके ट्रिब्यूटरी में इंडस्ट्री कौन कौन से हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही, पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइस है। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ये चला रही है। ये सर आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, इंडस की ट्रिब्यूटरीज। इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, पहले द गंगा, सॉरी द गंगा कह रहा हूँ, सॉरी, दी चेनाब, झेलम, द लगाते रहना, फिर उसके बाद चेनाब, झेलम, और कौन सा है? ब्यास है, रावी है, और चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज। ठीक है, इसे क्या है? ट्रिब्यूटरीज। सतलुज। हाँ, ट्रिब्यूटरीज है इसकी, इंडस नदी की। आप देखोगे तो ड्रेनेज करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे इंडस यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट होती है। ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज इनको और ज्वाइन कौन सी है? तो ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं इंडस से। ओके, तो इसमें एक टर्म पढ़ोगे दोआब। कौन सा रीजन? दोआब रीजन। आब मीन्स वाटर, दो मीन्स टू वाटर, मीन्स दो एरिया विच आर सराउंडेड बाय टू वाटर बॉडी। जैसे जैसे सर फोर्थ ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये मान लो एक लाइन पे है, और यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, मान लो एक वाटर बॉडी। दिस रीजन विल बी नोन एज द्वाब। ये कौन सा रीजन है? द्वाब। ये रिवर 1 मान लो, रिवर 2 मान लो। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, और वाटर की अवेलेबिलिटी हो गया है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छी होगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छी होगी तो इट मीन्स ग्रेन्स होंगे, ग्रेन्स होंगे तो फूड की सिक्योरिटी नहीं होगी। तो उसी तरीके से दोआब से क्या बना है? पंजाब। मीन्स पंज मीन्स 5, आप मीन्स वाटर। समझ में आया? सर इंडस में फोर्थ ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रावी। हाँ, कोई कुछ कह रहा है?
सर बैकग्राउंड नॉइस बहुत समझ नहीं आता है उससे। तुम बैकग्राउंड नॉइज को सुन रहे हो या मेरे नॉइज को सुन रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन रहे हो? सर उसकी वजह से सर सुनाई नहीं दे रहा। सर हाँ, बाकी बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। आप Yes, आप sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज है, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई इस तरीके का है। मैंने कैसी आवाज, अच्छा आवाज है कैसी जो अभी नॉइज आ रही है? सर चिल्लाने हैं कि यार ये। जैसे लाने की, तो छोटे बच्चे खेलते हैं तब चिल्लाते हैं। अब सही है? ऐसे तो क्या? सर चलो, तो जेनब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, these are the tributaries of Indus। पंजाब बता दिया। नाउ नेक्स्ट। हाँ, लोग से समझ में नहीं आया, वो समझो। क्या नहीं समझ में आया? सर आवाज नहीं आ रही आपसे, क्लियर बताओ क्या कह रहे हो? आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है, आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाकी बच्चों की आवाज आ रही है इनको? सर वो Yes, पूछ sir. रहे हैं DOP वो क्या लिखा है। द्वार, ये द्वार लिखा है। सर मैं ये नहीं लिखा, ऐसा मुझे समझ नहीं आया, तो वो एक बार समझा दो। नाम क्या है आपका? सर मैं नाम? चैट में लिख रही हूँ। अरे नाम क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ज्योतिष्ना। ओके, ज्योतिष्ना। देखो ज्योतिष्ना, ये सपोज अ पीस ऑफ लैंड है। ओके, ये पीस ऑफ लैंड है, इसके यहाँ पे एक रिवर वन फ्लो कर रही है, यहाँ पे एक रिवर टू। ओके, तो दो रिवर्स हैं, दो रिवर्स के बीच में एक रीजन है, तो ये रीजन को दोआब रीजन कहा जाएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल होगा और वाटर की अवेलेबिलिटी भी होगी। इसी तरीके से पंजाब वाला रीजन, जो ऐसा रीजन जो 5 नदियों से बना है, घिरा हुआ है। समझ में आया ज्योतिष्ना? यस सर। और किसी का कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? नो। आप चलिए आगे बढ़े ना। हाँ या तो ना, हाँ या ना तो बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, सर sir. वो इंडस के फोर्ट्स पे क्या लिखा हुआ है सर, इंडस की ट्रिब्यूटरीज पे? अब अभी यहीं पे ये लिखा है रात। ओके, Yes, sir. यस सर। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, अब इसी में है। ओके, हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं जो ओवरऑल जो नदन प्लेन है, अगर आप देखें तो ओवरऑल नदन प्लेन है वो फ्लैट लैंड, ये फ्लैट लैंड नहीं है। अब कहते हैं कि प्लेन है तो फ्लैट लैंड होगा, ऐसा सोचते हैं कि नदन प्लेन कह रहे हैं तो फ्लैट लैंड, तो ये गलत हो जाएगा जब आप ऐसे सोच लोगे कि इट इज अ फ्लैट लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डाइवर्स रिलीफ फीचर। इसके रिलीफ फीचर्स क्या है? अलग अलग हैं। सुनने में नाम रखा है, ठीक है, जो है फ्लैट नदन प्लेन है, ठीक है, बट फीचर्स क्या है? अलग, डाइवर्स फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं। अब नदन प्लेन में देखोगे आप तो डिसेंडिंग, राइट इट डाउन, डिसेंडिंग, ओके, फ्रॉम द माउंटेन,
Rivers descending from the mountains deposit pebbles 8 to 16 किलोमीटर। जब मैं पिछली क्लास में आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बता रहा था, तो मैंने समझाया था कि यहाँ से हिमालय से जब रिवर रिलीज होती हैं या डिसेंड करती हैं तो अपने साथ मिट्टी लेके चलती हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक का कोरस है, ठीक है, तो वो मिट्टी लेके चलती हैं या रॉक्स कह लो। तो जो सबसे भारी रॉक होता है वो सबसे कम दूरी तय करता है, और जो सबसे हल्की रॉक होती है या सबसे हल्की सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है ना। तो यहाँ पे वही हम चीज देख रहे हैं। तो ये देखो, जब रिवर डिसेंड करता है फ्रॉम माउंटेन तो सबसे पहला रीजन जहाँ पे जहाँ पे रिवर डिपोजिशन कहती है वो रीजन किसका है? भाभर का है। वहाँ पे किस चीज का डिपोजिशन होता है? पेबल्स का। नियरली जो विड्थ होती है उसकी 18 टू 16 किलोमीटर के बीच में होती है। तो इस रीजन का नाम है भाबर रीजन। कौन सा रीजन है? भाबर रीजन। यहाँ पे स्ट्रीम देखो नियरली क्या हो जाती है? डिसअपियर, क्योंकि पेबल्स का डिपोजिशन है तो ऑब्वियसली स्ट्रीम क्या हो जाएगी? डिसअपियर। स्ट्रीम समझते हो ना, बहाव, नदी का बहाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर हो पा रहा है सभी को? बाबर रीजन समझ में नहीं आया। मान लेते हैं ये नजर पेन से। आपकी आज पहली क्लास है? जिन्होंने पूछा है बाबर रीजन समझ में नहीं आया, उनकी पहली क्लास है? हाँ सर। जब मैंने आपको जब पिछली क्लास में आपको मैंने ये बताया कि जो नदियां हैं जब अपने साथ डिसेंड करती हैं, जो नदियां पहाड़ों से, तो अपने साथ मिट्टी लेके चलती हैं। तो जो सबसे भारी मिट्टी होती है वो सबसे कम दूरी तय करती है। आपने बताया था। हाँ, अब यहाँ पे लिखा है रिवर्स डिसेंड फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स। तो पेबल्स सबसे भारी मिट्टी हुई, भारी रॉक हुआ। मिट्टी भी रॉक से ही बनता है ना। तो वो पेबल्स कहा जा रहा है। वो पेबल्स 8 to 16 किलोमीटर के रीजन में क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है, और उस रीजन को हम भाबर रीजन कहते हैं। और वहां पे जो बहाव है पानी का वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है? पेबल्स है। समझ में आ रही बात? यस सर। और फिर से जब जैसे ही यहाँ पे भाबर रीजन होता है, ये भाबर रीजन है अगर, ठीक, तो इस भाबर रीजन के बाद नेक्स्ट तुरंत आपका आ जाएगा तेराई रीजन। कौन सा रीजन आएगा? तेराई। साउथ में और जाओगे तो उसके तेराई रीजन आ जाएगा। तो तेराई रीजन में ओके क्या है कि स्ट्रीम फिर से क्या हो जाती है? तेराई रीजन में स्ट्रीम फिर से क्या हो जाती है? समझ में आया? स्ट्रीम क्या हो जाती है? फिर से रीअपियर हो जाती है, या रीएमर्ज, या रीएमर्ज भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करती है? क्रिएट वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन क्रिएट होता है यहाँ पे तेराई रीजन में। वेट, स्वैम्पी, मार्शी समझते हो ना आप लोग? यस सर। ओके, थोड़ा दलदली टाइप का। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्रिएट होता है। और इस रीजन में आप देखोगे कि जब इस तरीके का यहाँ पे रीजन है, क्या होता है? फॉरेस्टेड। और थिकली फॉरेस्टेड होगा तो इट मीन्स फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा। वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरीके का जो तेराई रीजन में फॉरेस्ट देखा गया है वहाँ वो है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। इन विच स्टेट दिस इज? इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है? यस सर। तो ये दो रीजन है। फिर थर्ड है आपका बांगर रीजन। कौन सा है? बांगर। तो जो लार्जेस्ट एरिया है, अब इसको मैं बैठा तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, सर हाँ सर एक बार तेराई रीजन सर समझा दीजिए। तेराई रीजन, भाबर रीजन के बाद तेराई रीजन आता है। यहाँ पे जो है कि जो रीजन है वो वेट है, स्वैम्पी है। स्वैम्प समझते हो ना? ठीक है, तो स्वैम्पी है, मार्शी है। तो यहाँ पे रीजन जो रीजन है मोर और लेस थोड़ा सा काफी क्या है? डिफरेंट है देन भाबर, है ना। तो वेट स्वैम्पी होने का
होने के कारण, तल्दीन टाइप के होने के कारण, हालांकि पूरे तरीके से नहीं होता है, बट यस टू एन एक्सटेंट इट इज देयर। तो इस वजह से ये फुटहिल्स ऑफ हिमालयज में आपको मिल जाएगा टेररिज्म। तो वहाँ पे आप देखो फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होंगे, वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होंगे। तो ऐसे एरिया को अब देखो, उनमें से एक एरिया आपका दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि तेराई रीजन में पाया जाता है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, दुधवा नेशनल पार्क में आपके जो है कि वहाँ पे आसपास, इस तेराई रीजन के आसपास में आपके जो है कुछ पाकिस्तान से लोग भी आए हैं जो सेटल किए गए हैं। पढ़ा है आपने सभी ने? पढ़ा होगा माइग्रेंट्स वगैरह को नहीं पढ़ा है? आप सभी के स्कूल में ये पढ़ाया गया था? सर अभी नहीं पढ़ाया। जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को आएगा। तो नेक्स्ट वन आपका कौन सा? बांगर रीजन। नेक्स्ट रीजन है आपका बांगर रीजन। इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, बांगर रीजन के बारे में। ये सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा और उसको उसी तरीके से याद भी करना। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आपके आवाज के साथ बहुत शोर आ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नदन पेन, इज ऑफ फिर आप ऐसे सीधे लिखो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया नदन, क्या बांग्लादेश। फिर उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर दिस व्हाट एल्स? अब इसमें देखोगे एक टर्म है कैलकेरस डिपॉजिट। किसी बच्चे के यहाँ ये कराया गया है? बताओ। कैलकेरस डिपॉजिट होता है जिसको कंकड़ कहा जाता है। कंकड़ किससे बनता है? कैलकेरस, ठीक है? कैलकेरस डिपॉजिट से कंकड़। तो यू विल फाइंड कंकड़ नोड्यूल इन भांगर रीजन। भांगर रीजन में आपका कौन सा क्या मिलेगा? कंकड़। तो इफ कंकड़ नोड्यूल्स आर देयर इन भांगर रीजन, इट मींस इट विल बी लेस फर्टाइल। अभी लेस फर्टाइल ऐसा नहीं कि इट इज नॉट फर्टाइल, इट विल बी लेस फर्टाइल कंपेयर टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ रीजन। नेक्स्ट क्या है? भांगर के बाद खादर। कौन सा रीजन है? खादर रीजन। तो मोस्ट फर्टाइल अलुवियल सॉइल में मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ alluvial. Okay, this is the most fertile region of alluvial soil. Write it down something other region. तो यहाँ पे एक टर्म होगा, देखो मैं अभी बताता हूँ, पहले ये लिख लो। The newer, younger, सभी लिख रहे हो? सेपरेट नोटबुक सभी ने बनाया है ना? यस सर। यस सर। Okay, good. Yes, sir. Renewed almost after every year. Okay. Ideal for intensive agriculture. है ना? तो अब यहाँ पे जो मैं बात बताने वाला था, ये सपोज ये प्लेन, यस, तो ये वाला रीजन क्या है? नीचे है, ये वाला ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे ये सब तो लैंड ही है, ठीक है? अगर इसके आसपास नदी है, रिवर है, तो क्या होता है? टाइड एंड नीप आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है? इसकी वजह से यहाँ पर इस एरिया में वाटर कवर हो जाता है, वाटर आ जाता है। ये एरिया अबव फ्लड प्लेन, ये क्या है? अबव फ्लड प्लेन। ये एरिया कौन सा है? फ्लड प्लेन का एरिया, ऐसा प्लेन जिसमें फ्लड आता है। तो फ्लड प्लेन एरिया में ही आपको क्या मिलता है? खादर। अब अबव फ्लड में आपको क्या मिलता है? समझ में आई बात? तो फ्लड प्लेन एरिया में तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्या हो जाता है? रिन्यू हो जाता है। रिन्यू होने का कारण होगा ना,
हर साल कैसे रिन्यू हो रहा है? इट इज ड्यू टू फ्लड। तो फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल यही बन जाता है आपका खाना। ओके, समझ में आया सभी को? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट? यस सर। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट आते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू, हिमालय पढ़ लिया, नदन प्लेन्स पढ़ लिया, अब तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू, अब फिर से हम लोग अगर मैप देखें, मुझे मैप वगैरह उतना अच्छा नहीं आता बनाना, फिर भी बस टू ड्रॉ लगभग आपको लग ही रहा है ना कि इंडिया का ही मैप बनाया सबने। यस सर। अब यहाँ पे पेनिनसुलर पार्ट अगर देखो, यहाँ है बाद वाला पार्ट, केबल एंगुलर, तो ये सेंट्रल हाईलाइट, तो ये आपका सेंट्रल हाईलाइट वाला पार्ट है, ये ऑफ पेनिनसुला, डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट। तो दीज आर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू, यहाँ पे भी है थोड़ा। ठीक, तो पेनिनसुला प्लेटू जो है कि इससे बना हुआ है, ये लिख लो, ये बना है आपका ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rock। ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक से क्या है बना, ओके, फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग ये शायद मैंने बता दिया है, ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना। तो गोंडवाना लैंड आप जानते हो, ओल्डेस्ट लैंड मास। गोंडवाना लैंड के बारे में बताया ना? यस सर। यस सर, आपने गोंडवाना यस लैंड के सर बारे में बताया बताया। है। हाँ, प्योर मिनरल्स को ये सब का डिपोजिशन आपका गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, एंड पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ये तो फिर बाद में फॉर्म हुआ है। फिर ओल्डेस्ट लैंड मास, अब यहाँ पे प्लेटू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्लेटू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्लेटू को जब डिवाइड करोगे तो दो पार्ट्स में करो, सर सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड वन इज डेक्कन प्लेटू। ओके, तो आपके ऊपर सेपरेटली आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स इस पे भी आ सकता है और इस पे भी आ सकता है। ओके, कि शॉर्ट नोट्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड पे लिखे या शॉर्ट नोट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू पे लिखे। यस सर। ओके, इस तरीके से एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसको एक एक करके कर इसको डील करेंगे। तो ये लिख लिया सभी ने? Shall I rub this now? यस सर। Everyone out Yes, there? sir. Yes, sir. यस सर। तो आई थिंक ये मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में नॉर्थ ऑफ, यहाँ पे देखो नदी है, नर्मदा। कौन सी नदी है ये?
नर्मदा, इसके यहाँ एक नदी है ताप्ती, ये भी ड्रेनेज में पड़ा हुआ है। नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, यही है आपका सेंट्रल आइलैंड। समझ में आ रही है बात? ये है आपका नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा। फिर उसके बाद नेक्स्ट विंध्यन रेंज बाउंड बाय द सेंट्रल in the south and there are the on the northeast. विंध्यन रेंज बाउंड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। ठीक है, साउथ में अगर आप देखो तो विंध्यन रेंज है सेंट्रल हाईलैंड के, और यहाँ पे एक रेंज है अरावली रेंज। अरावली रेंज जानते हो आप लोग? आपने देखा होगा फ्रॉम Yes, गुजरात sir. टू दिल्ली देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ अरावली रेंज। ओके, रेसिडुअल माउंटेन, बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत पुराना माउंटेन है। हाईएस्ट पीक क्या है? नेक्स्ट क्लास में बता देना व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। माउंट आबू है सर या गुरु शिखर? पहले फाइंड करके बताइएगा। अब यहाँ से देखो कि रिवर्स निकलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, ऐसे। ठीक है, तो रिवर्स आल्सो डिसेंड्स फ्रॉम हियर, राइट इट डाउन। चंबल, द सिंध, बेतवा एंड किंग। ठीक है, फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ वेस्ट से ये देखो, साउथ वेस्ट आप समझते हो, डायरेक्शन सेंस आई थिंक आप सभी को होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब यहाँ से नॉर्थ, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में ऐसे ही होगा ना कुछ, है ना? इस डायरेक्शन में। Yes, sir. यस सर। तो ये देखो, ये कुछ इसी डायरेक्शन में है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दूं, आप समझ जाओगे अपने से। ये बताओ पहले, ऐसे समझाऊं मैं या फिर आप लोग सिर्फ मैं बोल दूं, आप लोग अपने से समझ जाओगे? बोल दो। बोल दें, किसने कहा बोल दो? अरे नाम तो बताइए। सर लक्ष्येंद्र यादव। लक्ष्येंद्र, मैं बोल दूंगा तो आ जाएगा आपको ना पक्का? बाकी बच्चे बताओ, यस सर। बाकी और No, बच्चे sir. बताओ। आप सर अच्छे से समझा के बताइए। सर अच्छे से समझाओ। अच्छा अच्छा, सर डराओ एक्सप्लेन मत, कर दो। डराओ मत। तो अच्छे से ही ये अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ मैं, अच्छे से समझा रहा हूँ ना आप सर लोगों को, अच्छे से समझा रहे हो। है ना? धीरे धीरे आप लोगों को मैप बना Yes, के, sir. रिवर फ्लो करा के, है ना? नहीं तो ऐसा भी हो सकता था मैं आता फटाफट बोलता है सेंट्रल आइलैंड, तो दिस आर द फैक्शन। ठीक है, सेंट्रल आइलैंड कंप्लीट, है ना? इसको एक शॉर्ट नोट बना लेना, यस डन। सर। मैं तो एक एक चीज बना के आपको लिख के करा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन, इसी में लिखना है सेंट्रल आइलैंड वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर ईस्ट। वेस्ट में वाइडर है और नैरो है ईस्ट में। ओके, समझ में आ रही बात? अब इसमें दिखा रहा है, दिखाओ। ये मैंने बनाया भी है, वेस्ट है ना, ये वाइडर है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ईस्ट में क्या हो रहा है? नैरो होते जाए। ओके, ईस्टवर्ड जो इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन लोकली नोन एज
बुंदेलखंड और एंड बागेलखंड। बुंदेलखंड और बागेलखंड इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। और भी आगे जाओगे ईस्टर्न मोस्ट अगर चले गए तो आपको कौन मिल जाएगा, छोटा नागपुर, पार्ट ऑफ सेंट्रल आइलैंड, ठीक है। यस सर। समझ में आया? यस सर। क्लियर है Yes, यहाँ तक sir. सभी को? छोटा नागपुर। तो इसके अलावा जो है मतलब इसमें अलावा और किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो भी, देन एंड देयर। किसी का कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े? गुड। अब इसमें नेक्स्ट करने दीजिए। हाँ सर जो आपने हाईएस्ट पीक पता करने को कहा था सर, वो आपने कब कहाँ की कही थी? अरावली की कही थी। Sir, done. चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डेक्कन प्लेट। नेक्स्ट क्या है आपका? डेक्कन। ओके, तो डेक्कन प्लेट क्या है आपका? ट्रायंगुलर लैंडमार्क मैंने बता दिया। लैंडमार्क फिर से हम लोग देखते हैं थोड़ी देर मैप। ये अगर मिल जाए है तो ये ट्रायंगुलर लैंडमार्क कुछ ऐसे ही आ रहा है ना, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगुलर लैंडमार्क है साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के क्या है? साउथ। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सतपुरा बेस है इसका। सतपुरा बेस नॉर्थ में आपको दिख जाएगा। सतपुरा बेस है, देखो विंध्याचल रेंज है, सतपुरा है। विंध्याचल सतपुरा के बीच में ही नर्मदा बहती है। तो इसके नॉर्थ में कौन है? ट्रायंगुलर लैंडमार्क के नॉर्थ में कौन है? सतपुरा। और ये नर्मदा, ये आपका विंध्य है। तो इसके साउथ में या नर्मदा के साउथ में क्या है? ट्रायंगुलर लैंडमार्क ऑफ डेक्कन प्लेट है ना। फिर नेक्स्ट महादेव, तैमूर हिल्स, ये सब इसमें पाए। महादेव, तैमूर हिल्स, विंध्य सतपुरा में ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप देखो इट इज हायर इन वेस्ट एंड जेंटली। सर, सर आपने सर मालाबार के साइड में क्या लिखा है? मालाबार तो यहाँ है, मैंने तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। सर सतपुरा बेस के नीचे महादेव लिखा है, महादेव। सर महादेव लिखा है। सर उसके साइड में क्या लिखा है? सर महादेव तैमूर हिल्स, KAIMUR। कैमूर हिल्स। ओके सर। अब इसी का डेक्कन का ही एक पार्ट है नॉर्थ ईस्ट में। ओके, जो पिछले वाला मैप बनाया उसमें आप देखोगे अच्छे से, तो मेघालय में पाया जाता है। इसके बाद आसाम में भी है कार्बी आंगलोंग प्लेटू। कौन सा प्लेटू? कार्बी आंगलोंग प्लेटू इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। एंड नॉर्थ छत्तर हिल्स, ये भी कहाँ है? नॉर्थ छत्तर, चलिए सही है ना। हिल्स ये कहाँ है? इन द स्टेट ऑफ असम। तो असम और मेघालय में भी आपको क्या मिल जाता है? एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू। ओके, क्लियर है?
यहाँ पे प्रोमिनेंट टेस्ट मिल जाएंगे आपको। Here are prominent hills in Meghalaya, known as Garo and Jayanti. Garo Khasi and Jayanti भी है। Okay, this one is Garo, this one is Khasi, this one is Jayanti. Garo Khasi, Jayanti। समझ में आ रही है बात सभी को? Yes, sir. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डिस्कशन, कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे एक बात ये लिखा है, इट इज हायर इन वेस्ट एंड जेंटली स्लोप ईस्टवर्ड। तो आप जब पेनिनसुलर रिवर पढ़ोगे ड्रेनेज में तो देखोगे यहाँ पे ये क्या है, हायर है और ईस्टवर्ड स्लोप करते हैं। तो नंबर ऑफ रिवर जो डिसेंट होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, वो जाके कैसे मिलाती हैं, बे ऑफ बंगाल। समझ में आई बात? ओके, Yes, sir. only one student is saying yes. What about the rest? Okay. Yes, sir. Oh, Yes, sir. very good. अब यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू में, वो है आपका वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेरी 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 फॉर योर एग्जाम। तो किसी के यहाँ पढ़ाया गया होगा और यूपी हो गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन आया हो उसमें। नहीं आया तो आएगा, वेस्टर्न घाट्स का क्वेश्चन आया था। आया था। तो ये रहा आपका वेस्टर्न घाट्स, ये आपका ईस्टर्न, कुछ ऐसा। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स यही आता है। तो जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा, व्हाट यू विल डू, जब भी कभी किसी भी चीज में डिफरेंस पूछा जाए, एक लाइन चाहिए तो उससे यू विल शो द डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म। ओके, आई एम रनिंग दिस आउट। आप लोग लिख लोगे या मैं लिख दूं? बताओ। सर आप लिख दो। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न मार्क्स, वेस्टर्न of Deccan. Mark Western area of Deccan. Okay. Mark Eastern area of Deccan. Okay. Second, continuous and can be crossed through passage. Okay, इसके कैसे this continuous लिख लो फिर समझाओ। Bisected by rivers. Okay. Causes orographic rain, nearly parallel. No orographic.
लिख लिया इतना सब ने? नो सर, अभी लिख रहे हैं। चलिए तो समझ लीजिए तब तक जब तक लिख रहे हैं, या पहले लिख लो फिर समझाऊं? चलो सर लिख दिया। तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अब देखो मार्क्स वेस्टर्न एज, ये तो बहुत सिंपल है, देखिए ये वेस्टर्न एज है और ईस्टर्न एज है, ये इसमें कुछ बताने की बात नहीं। कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज। ये कॉन्टिन्यूअस है वेस्टर्न घाट, तो इसमें पासेज है, ठीक है, और बाल बाल इस तरीके से, ठीक है। तो वो पासेज के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर, ये देखो इस तरीके से डिसकॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे जो रिवर डिसेंड करती हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से डायसेक्ट करके आगे जाके बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, मार्च हो जाती है, ट्रेन हो जाती है। और फिर उसके बाद कॉजेज फोटोग्राफिक रेनफॉल। तो रेनफॉल अगर आप देखो इंडिया में जो होता है मैक्सिमम फोटोग्राफिक होता है, तो सपोज माउंटेन है, मॉइस्ट बियरिंग विंड आ रही है ऐसे ब्लो करते हुए, तो क्या होती है विंड, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन जब हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आते ही ये विंड यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उसको माउंटेन क्या करता है, रोक लेता है। तो ये विंड यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, इस क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे बारिश हो जाती है इस एरिया में। तो यहाँ पे ये माउंटेन है, तो बारिश इस वाले पार्ट में हो जाती है, बिल्कुल फोटोग्राफिक। यहाँ पे बारिश कम होती है, वेरी गुड। इसको कहते हैं विंडवर्ड साइड, इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। जब मैं आप लोगों को क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसके बारे में और डिस्कशन होगा, है ना। बट इन केस यहाँ से विंड आ रही है, ऐसे आती है, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट की साइड में विंड ऐसे आती है, सीधे जाके यहाँ पे बारिश कराती है, गारो खासी कहती है ना। आपने मौसम नाम चेरापूंजी सुना है? Yes, sir. हाँ, तो मौसम नाम चेरापूंजी में यही विंड जाके बारिश होती है। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून में यहीं पे बारिश हो जाती है, यहाँ पे कम होती है इस वजह से। ओके, तो these are 3 points। अब इसे रब कर दूं मैं? यस सर। ओके, इसमें एक पॉइंट और है, लिख लो उसको। फोर्थ, हाईएस्ट पहला है अनाइन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रीज, सीबीएसई में पूछ सकते हैं। कितना है इसका? 2695 है। तो दूसरा है आपका दोदा यस बेटा, सर। दोदा बेटा 2637, 37 है या तो ठीक है, कर देता हूँ, ठीक है। इसकी हाईएस्ट क्या है? सर हम्म, सर डोडा बेटा कहाँ लोकेट होता है? हम ये दोदा बेटा आपका तमिलनाडु में। सर तमिल। हाईएस्ट पीक आपका ईस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न है, याद रखिएगा, ये ईस्टर्न वाला है। उसी का कंटिन्यू महेंद्रगिरी, कौन सा? हाइट 1501 मीटर, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ईस्टर्न घाट में शेवरॉय एंड जावेदी हिल्स है, ठीक है, जो साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में क्या मिलता है? शेवरॉय एंड जावेदी,
कौन सा है? शेवरॉय है। इन सारे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छे से तैयार करें। ओके, क्लियर? अरे हाँ या ना बताओ। सर साउथ ईस्ट यस सर। आवाज आपकी कट रही है। ये याद रखिएगा, उगागा मंडलम, ठीक है, इज नोन एज ऊटी। उगागा मंडलम इज नोन एज ऊटी, ठीक है। तो ये आपका ऊटी आई थिंक जानते हो ना, कौन से जगह में, कौन से स्टेट में है? तो ये सारे कुछ चीजें हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ये आप क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, है ना। आप लोगों ने किसी बच्चे ने इसे पढ़ा है? साउथ ईस्ट यस ऑफ सर। ईस्टर्न घाट्स में शेवरॉय एंड जवादी है। अब इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर भी है। क्या डिस्टिंक्ट फीचर भी है इसका? क्या है? सर सर वो UDAG है, तो आपने UGAG लिखा है। ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक कहा तुमने। उदागा मंडलम, यस करेक्ट। फिर जो इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुला प्लेटू का, वो है द ब्लैक सॉइल एरिया। ब्लैक सॉइल एरिया सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है ब्लैक सॉइल का। हाँ, ये छोटा नागपुर प्लेटू में ज्यादा पाया जाता है। ब्लैक सॉइल पक्का। छोटा नागपुर प्लेटू तो आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। डेक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाता है? डेक्कन ट्रैप। अगर ये ऐसे बना तो फिर से यहाँ डेक्कन ट्रैप। ये मैप अब जब मैं मैप कराऊंगा ना, तो फिर वहाँ पे इसका डिस्कशन होगा डेक्कन ट्रैप वाला ट्रैक। अभी के लिए सिर्फ बस डेटा याद रखो कि ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि वो इसमें और कुछ कह रहे हैं, इसको रब कर दूं मैं? सर आपने डेक्कन के बाद से नीचे क्या लिखा है? तो नॉन एज डेक्कन ट्रैप, TRAP। इसे कर दो। नेक्स्ट है इसमें अरावली हिल्स का थोड़ा अरावली हिल्स लाई ऑन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट margins of the peninsula. Okay, Aravalli Hill lie on western and northwestern margins of the peninsula. Okay. ये देखिए, अब नेक्स्ट जो आता है आपका द इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट वेरी इजी। फिर से अगर हम ड्रॉ करें, आपको मालूम है कहाँ पे है? जानते हो सभी बच्चे? यस सर, राजस्थान में द थार डेजर्ट। तो ऐसे ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, डेजर्ट वाला पार्ट। उस एरिया को डेजर्ट कहा जाता है जहाँ पे रेनफॉल क्या हो, लेस देन 25 सेंटीमीटर। वहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं? दैट पर्टिकुलर एरिया वी डिक्लेयर एज डेजर्ट। तो इसमें लिखते हैं वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली
हिल्स, अरावली हिल्स ऐसे ही है। इसके वेस्टर्न मार्जिन में क्या है आपका डेजर्ट, ठीक है, अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, covered with sand dunes। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है लेस देन 120 मिलीमीटर पर ईयर, इसलिए ये रेगिस्तान है। यहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, एरिड क्लाइमेट है एंड लो वेजिटेशन। यहाँ पे एक स्ट्रीम अपीयर होती है, सैंडी प्लेन से पहले क्या लिखा है आपने सेकंड वाले में? कहाँ पे? सैंडी प्लेन कवर्ड विद अनड्यूलेटिंग, UNDULATING, undulating stream appear during rainy season and soon disappear into the sun। रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे जो लार्जेस्ट रिवर है आपकी वो कौन सी है, लूनी रिवर। लूनी is the only large river in this area। And this reason ओके। अब यहाँ पे देखो सैंड ड्यून्स के बारे में, तो सैंड ड्यून्स के बारे में बात होगी। एक होगा बर्चन्स, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। पहले बर्चन्स ये लिख लिया सभी ने? नो सर। लिख लो, फटाफट लिख लो। नो सर। क्लाइमेटिक सर डन। वेजिटेशन से पहले क्या लिखा है सर? कहाँ पे, किस फिर से बोलो। आवाज आपकी क्लियर नहीं आई, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है। सर क्लाइमेटेड लो वेजिटेशन। अच्छा, एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन। फिर उसके नीचे लिखा है स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सून डिसअपीयर इनटू द सैंड। एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन। चले तो नेक्स्ट आते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो आपका क्या है इसमें, हाँ बर्चन्स के बारे में। सैंड है बर्चन्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। बर्चन्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। तो बर्चन देखोगे तो आपको जो बर्चन मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। क्रिसेंट लाइक, क्रिसेंट मून देखा आपने? क्रिसेंट मून पढ़ा है ना, फुल मून, Yes, हाँ sir. सब पढ़ा होगा ना Yes, sir. साइंस वगैरह। तो ये क्रिसेंट शेप ड्यून, यस सर। ड्यून्स है। ड्यून्स क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो बर्चन्स आपको कहाँ मिलते हैं, कवर्स लार्ज एरिया
जैसे अगर आप देखो तो इंडो पाक ओके. Is it okay for everyone? समझ में आया आप लोगों को? यस सर. Yes, sir. यस सर. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका पोस्टल 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 पेन से फिर से हम लोग बनाएंगे. ये वेस्टर्न घाट से या आपका ईस्टर्न ये पोस्टल प्लेन है आपका. पोस्टल प्लेन नैरो कोस्टल स्ट्रिप. नैरो कोस्टल स्ट्रिप running along the ravines from the west and Bay of Bengal on the east. Narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. Western coast. क्या होता है सैंडविच between Western Ghats and Arabian Sea. ठीक है. एक तरह से सैंडविच है. देखो ये है एंड ये वाला पार्ट सैंडविच समझते हो ना कैसे बनता है? दो ब्रेड के बीच में. तो ये वाला एज और ये वाला एज के बीच में यही एक क्वेश्चन है. सर सर सैंडविच के नीचे क्या लिखा है? बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अब देखो यहाँ पे डिवीजन किया गया है. क्या किया गया है? डिवीजन यहाँ पे यहाँ पे. ओके. तो इस वाले पार्ट को कोंकण कह दिया. इस वाले पार्ट को कन्नड़ कह दिया. इस वाले पार्ट को मालाबार कह दिया. ओके. नॉर्दर्न पार्ट आपका मुंबई गोवा. फिर उसके बाद सेंट्रल आपका आ जाएगा कन्नड़. सदर्न आ जाएगा आपका मालाबार. ये सब क्या है? कोस्टल. ये सब क्या है? कोस्टल. समझ गया? यस सर. अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल. ये तो अरेबियन सी वाला था. बे ऑफ बंगाल में तो बे ऑफ बंगाल में दो ही आपको कोस्टल हिंट पढ़ना है. एक नदन सरकार, एक कोरोमंडल. नदन सरकार नॉर्दर सरकार. आपका कोरोमंडल. तो लिख लो. बे ऑफ बंगाल वाला plains are coastal plains are wide and level. Okay. Northern part मैंने आपको बता दिया है. नॉर्दर्न सर्कल. NP here means northern part means northern circle. Southern part
यहाँ पे रिवर लाइक, ये भी लिख लो। अब शैल आई रब दिस नाउ, लिख लिया सभी? तो सर एक मिनट सर वेट, जा सर प्लेन्स एंड उसके आवाज कट रही है, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, बट आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस नेटवर्क। हो गया, आगे बढ़े। सर सर हाँ सर बोलो। प्लेन्स आर वाइड एंड सर उसके बाद क्या? लेवल, LEVEL, लेवल। प्लेन्स आर वाइड एंड लेवल। ठीक है, shall I rub this now? सर नॉर्दर्न प्लेन में सर नॉर्दर्न के आगे क्या लिखा है? नॉर्दर्न सरकार, यहाँ पे ना, नॉर्दर्न सरकार, यस, यही लिखा है। हो गया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे लिखोगे कि रिवर, इसी में लिखोगे रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्या बनाते हैं? एक्सटेंसिव। क्या बनाते हैं एक्सटेंसिव डेल्टा? जैसे सबसे बड़ा एक, जिसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है चिन का, ये क्या है? सॉल्ट वाटर लेकिन कौन से स्टेट में? उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका दी आइलैंड्स। क्या है? आइलैंड्स। फिर से मैप देखो, ये क्या है आपका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, और ये क्या है? लक्षद्वीप। जानते हो ना ये तो? यस सर। नॉर्थ में आपका अंडमान है, साउथ में आपका निकोबार है। इसको कंबाइंडली हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आइलैंड्स के बारे में सबसे पहले हम करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप, इसमें लिखो क्लोज टू द मालाबार। दिख रहा है आप लोगों को? मालाबार मैंने यही बनाया था ना, इस क्लोज टू द मालाबार। ग्रुप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। कोरल अभी हम लोग पढ़ेंगे, कोरल क्या होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक क्या है? व्हाट इज कोरल? कोई जानता है आपने से? अगर जानता है तो बहुत बड़ी बात है। यस सर। क्या होता है? सर वो अंडर वाटर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्या है माइक्रोस्कोपिक? हम लोग करेंगे अभी। आप देखो, लक्षद्वीप को पहले क्या बुलाया जाता था? अर्लियर इट वाज नोन एज लाकाडाइट, मिनिकॉय एंड हमिंगबर्ड। लाकाडाइट, मिनिकॉय एंड हमिंगबर्ड। और 1973 में क्या हुआ? इसको एक कर दिया, ठीक है, और इसका नाम रखा लक्षद्वीप। सर ये तीनों नाम तीन अलग अलग टाइम पे बोले जाते हैं, बट तीनों टाइम नाम पहले बोले जाते हैं। पहले नाम थे इनके लाकाडाइट, मिनिकॉय, अलग अलग आइलैंड से उसको ग्रुप करके एक नाम दिया गया लक्षद्वीप। ओके, 1973 में। और इसका एरिया अगर आप देखो 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्या है इसका?
का भारत, ये पूछा क्या है यूपीएससी में? का भारत एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, का भारत क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। यहाँ पे देखोगे ड्राइवर्स फ्लोरा एंड फॉना, ड्राइवर्स फ्लोरा एंड फॉना। ओके, कितने आइलैंड्स हैं टोटल लक्षद्वीप में? 36, ये लिखते हैं एनटीएससी में पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम पीकी आइलैंड, क्या नाम है? पीकी आइलैंड। क्या है? अनहैबिटेटेड बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे रहता नहीं है, मतलब बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी। और वहाँ पे क्या है? एक बर्ड सेंचुरी। पीकी आइलैंड के बारे में ये डेटा याद रखिएगा। समझ में आया? क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है जो भी बताया जा रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको एनिमल्स होगा ना? क्या कह रहे हैं सर जो आपने फ्लोरा एंड फौना लिखा है सर, उसका मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा ना? हाँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। गुड। और देख आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा इसमें क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चंस। मेक श्योर कि आप सभी लोग पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? ओके। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आते हैं, इसमें मिटा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत ब्रेक हो रही है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। elongated chain of island extending north to south. Bigger in size. क्या है साइज में? क्या है बिगर? and are more अंडमान एंड निकोबार, जैसे मैंने बताया आपको, निकोबार हिस्सा। ओके, तो नेक्स्ट है, ये भी बताया था, कहा जाता है एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन। मैंने ये बताया था जब मैं हिमालय के बारे में बता रहा था कि शार्प बेंड हो जाता है, पता? नो सर। हिमालय का ही पार्ट है ये, ठीक है? सबमरीन माउंटेन, सबमरीन आइलैंड, अगर इनसे यस सर बताया था बताया होगा। सर, वो साइड हाँ, से मुड़ जाता हाँ, है सर शार्पली। हाँ, जो बेंड हो जाता है हिमालय, फिर ऐसे यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स वगैरह, फिर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। कहा जाता है ये सबमरीन माउंटेन भी है, सबमरीन आइलैंड भी है, ऐसा कहा जाता है। ग्रेट डाइवर्सिटी और फ्लोरा फौना भी है, ग्रेट डाइवर्सिटी। यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब
यही सारी बातें आपने निभानी दोबारा की, इतना ही आपको समझना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो भी हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स पढ़ा, चाहे वो फिजिकल डिवीजन यस पढ़ा, सर। फिजिकल डिवीजन में चाहे वो नदर्न प्लेन्स पढ़ा, चाहे हिमालय पढ़ा, चाहे पेनिनसुला केटू पढ़ा, चाहे द आइलैंड्स पढ़ा, चाहे कोस्टल पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स, चाहे डिजर्ट्स पढ़ा, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। कॉम्प्लीमेंट्री आई सर थिंक, हाँ। सर इक्वाटोरियल क्लाइमेट क्या होता है? इक्वेटर पे जो क्लाइमेट है, जिस तरीके का क्लाइमेट आपको इक्वेटर पे मिलता है उसको इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं। जब मैं क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके सर। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि यस, जितने भी फिजिकल डिवीजन हमने पढ़े ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर मींस एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। आई थिंक यू हैव स्टडीड इन योर मैथ्स आल्सो दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना? मींस समथिंग which finally gave us the value of 90 डिग्री, है ना? तो कंप्लीट कर देना उसको, चाहे 45 45 हो जाए, 50 30 50 40 हो जाए, पढ़ा है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, मींस अब इस फिजिकल डिवीजन का क्या बेनिफिट है? तो यस, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मींस वन इज कनेक्टेड टू द अदर। अगर इसमें से कोई एक भी हटा दो तो क्या हो जाएगा? सब डिसबैलेंस होगा। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस। ह्यूमन लाइफ हियर रेफर्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल नदर्न हिमालय अगर आप नदर्न प्लेन्स देखें तो ग्रीनरीज के लिए जो है कि जाना जाता है। माउंटेन से डिफरेंट रिवर्स डिसेंड करती हैं, तो उससे क्या होता है? रिवर्स से हमें वाटर मिलता है। लेकिन प्लेट्यू या प्लेट्यूज अगर सिर्फ कहें तो उससे हमें मिनरल्स मिलता है, मिनरल स्टोरेज है वो। ओके, कोस्टल प्लेन में आप जो है अम्यूजमेंट के लिए जा सकते हैं, फिशिंग के लिए जा सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म ऑन दिस different physical division of India. समझ में आई बात? Different activities we can perform on this physical division of India. So it is very important for your examination. If you have your book right now with you, okay, there you will find that how these divisions are complementary to each other. So what you will do, you will if you have written all these things, you have to mail it out to me at this email ID. है ना? Let me see how many of you have written all this. सभी ने लिखा है ना? सबका डेटा रिकॉर्ड करके रखूंगा। जो बच्चा अच्छे से कर रहा है उसका जरूर एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा मेरे से। समझ में आई बात? यस सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि जो भी काम मैंने कराया उसको क्या करिए? मेल कर दीजिएगा इस ईमेल आईडी पे। मैं सबका डेटा जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैनेज करूंगा, और वैसे ही फिर फीडबैक जाएगी आपकी। ओके सर। तो आप रेगुलर होमवर्क करते रहें, यू विल डेफिनेटली गेट अ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम माय साइड। बस क्वेश्चन वगैरह भी आंसर करते रहिएगा, जो भी क्लास में वो भी पूछूं, थोड़े बहुत ही बताओ थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आप आंसर करो, मतलब आंसर जवाब दो, पर बताओ। थोड़े भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े गलत हैं थोड़े सही है तो भी चलेगा, पर चुप रहना नहीं चलेगा। पेयर एक बना लो, सोशल की एक सेपरेट। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। वी विल हैव फर्दर डिस्कशन। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहोगे? सर यस सर एक क्वेश्चन था प्लीज। सर, कंचनजंगा और सर K2 में से क्या डिफरेंस है? कंचनजंगा थोड़ा सा डिफरेंस नहीं, मतलब सर उनके बारे में से थोड़ा बता सकते हो? K2 is the highest peak of India and Kanchenjunga is the highest peak of Himalaya in India. Kanchenjunga lies in Himalaya, K2 lies in Trans Himalaya. ठीक है, यही है। ओके सर। और सर एक और चीज पूछनी थी सर, अरेबियन सी में सर कौन कौन सी रिवर्स सर डिपॉजिट करती हैं? अरे माही है, छोटे बहुत सारे, नर्मदा है, तापी है, माही है। सर तापी भी उसी में जाती है? हाँ, भरत पूजा है, पेरियार है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक से पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक क्या होगा बता सकते हैं आप में से? क्या पढ़ेंगे आप लोग? चलिए मैं ही डिसाइड करके आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग होमवर्क करिए और उससे मेल से भेजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वॉइस इज ब्रेक। ओके स्टूडेंट लेफ्ट मत करना।